विद्युत प्रवाह आधारित लूपना कारणे उद्भवती चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं दर्शावो। आ चुंबकीय क्षेत्रनी दिशा जाणवा माटेनो नियम लखो। तो मित्रों, आ प्रश्न चुंबकीय क्षेत्रनी दिशा जाणवा माटेनो छे अने ए पण विद्युत प्रवाह आधारित लूप अथवा तो रिंग माटे। तो एनो नियम कंईक आ प्रमाणे छे। तमारो जमणो हाथ लेवानो छे। जमणा हाथने जे दिशामां प्रवाह वहेतो होय ए रीते एनी जमणा हाथनी चारे आंगळीओने वींटळाववानी छे। એટલે ધારી લ્યો કે આ રિંગમાં આ રીતે પ્રવાહ વહી રહ્યો છે, તો આપણી આંગળીઓને આ એરા પ્રમાણે આંગળીઓને વીંટળાવવાની છે। પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, જમણો હાથ લેવાનો છે। તો જમણા હાથની ચારેય આંગળીઓને એ આકૃતિમાં જે રીતે પ્રવાહ પસાર થઈ રહ્યો છે એ રીતે વીંટળાવતા અંગૂઠો જે દિશામાં જોવા મળે તેને ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા ગણવામાં આવે છે। તો બહુ સિમ્પલ છે। જે રીતે પ્રવાહ વહેતો હોય એ રીતે આપણે આંગળીઓને વીંટળાવવાની છે અને અંગૂઠો જે દિશામાં જોવા મળે એને જમણા હાથના અંગૂઠાના નિયમ પરથી એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા ગણવામાં આવે છે। તો મિત્રો, અહીં તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે આ રીતે છે એ અંગૂઠાને રાખવાનો છે અને આંગળીઓ વીંટળાવવાની છે। તમે જોઈ શકો છો કે જે પ્રવાહ વહી રહ્યો છે એ આમ વહી રહ્યો છે, એટલે આંગળીઓ છે એ આમ વીંટળાવેલી છે, એટલે એના કારણે અંગૂઠો આપણને આમ ઉપર જોવા મળે છે, જેને ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા ગણવામાં આવે છે। તો આમ એના માટેનો જે નિયમ છે અહીંયા લખેલો છે કે ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા જમણા હાથના અંગૂઠાના નિયમની મદદથી મળી શકે છે। એના માટે શું કરવાનું, તો કે તમારા જમણા હાથની મુઠ્ઠી વર્તુળાકાર તારની ફરતે એ રીતે વાળો કે જેથી તમારી આંગળીઓ પ્રવાહની દિશામાં હોય, એટલે જે દિશામાં પ્રવાહ હોય એ દિશામાં આંગળીઓને વાળવાની છે। તો અંગૂઠો જે દિશામાં હોય તે ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા દર્શાવે છે। તો આમ બહુ સરસ રીતે સમજી શકાય છે કે કઈ રીતે એ પ્રવાહ વહેતો હોય છે અને ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા આપણને કેવી રીતે મળતી હોય છે। મિત્રો, એ સિવાય બીજું આપણે એ જોઈ શકીએ છીએ કે આ રીતે સપોઝ આપણને મળતું હોય એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપણને આમ મળશે। તો મિત્રો, ગજિયા ચુંબકમાં હંમેશા એન ધ્રુવમાંથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ એ બહાર નીકળતી હોય છે, એટલે આપણે આને એન ધ્રુવ ગણી શકીએ અને નીચેનાને એસ ધ્રુવ ગણી શકીએ। તો આમ આપણને એ પણ ખબર પડી જાય કે આ વર્તુળાકાર પ્રવાહધારિત જે લૂપ છે એના કારણે જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળે છે અને એ જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે એનો એન અને એસ ધ્રુવ આપણે કયો લેવાનો રહે, એ આ લૂપ માટેનો એન ને એસ ધ્રુવ કયો ગણવાનો રહે, તો જેમાંથી ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર નીકળતી હોય તેને એન ધ્રુવ તરીકે લેવામાં આવે છે। જેમાં ક્ષેત્ર રેખાઓ દાખલ થઈ જાય, કારણ કે હંમેશા ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ બંધ ગાળો રચતી હોય છે, એટલે આમથી નીકળી અને આમ જતી હોય છે, એટલે આપણે અહીંયા દાખલ થાય છે ક્ષેત્ર રેખા, એટલે આપણે કહી શકીએ કે આ એસ ધ્રુવ હશે, અહીંથી બહાર નીકળે છે એટલે કહી શકીએ કે આ એન ધ્રુવ હશે। તો આમ આ એન ધ્રુવ અને આ એસ ધ્રુવ તરીકે વર્તશે। થેન્ક યુ। પ્રવાહધારિત રિંગના લીધે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા જાણવા માટે જમણા હાથના અંગૂઠાના નિયમનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તે સમજવા માટે એક વિડીયો જોઈ લઈએ। में हमने देख रखा है कि अगर मैं एक स्ट्रेट वायर लूं और उसमें करंट को भेजूं तो फिर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाली है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी अगर मैं एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर लूं और उसमें करंट को भेजूं। तो अब यही देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट की मदद से। अब इसके लिए मुझे चाहिए होगा आयरन फाइलिंग्स, आयरन के बुरादे, और उसे मैं छिड़कने वाला हूं इस सर्कुलर लूप के ऊपर। अब इसी को करने के लिए मेरे पास एक वीडियो है। देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कॉपर वायर जो कि एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में मुड़ा हुआ है और ये पास कर रहा है एक ग्लास स्लैब के थ्रू जिसके अंदर है कुछ आयरन फाइलिंग्स। अब जब मैं करंट को पास करूंगा इस लूप के थ्रू तो फिर इस लूप के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाली है और ये जो आयरन फाइलिंग्स है ना, ये खुद को इस फील्ड के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेने वाले हैं और हमें फिर पैटर्न दिख जाने वाला है। तो आओ इसी को करते हैं। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन को पूरा कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा इसके थ्रू करंट फ्लो करने लगेगी और हमें एक पैटर्न दिखने वाला है आयरन फाइलिंग्स का। देखो, ये कितना ब्यूटीफुल पैटर्न हमें दिख रहा है। अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ वायर के पास में तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एक सर्कल में अरेंज करती हुई दिखेंगी और जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वैसे वैसे ये सर्कल ये बड़ा होते जाएगा
हमें एक बिगर कर्व मिलेगी, एक बिग और एक फ्लैट कर्व इनफैक्ट। और जब तुम सेंटर में पहुंच जाओगे तो तुम्हें ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने वाली है। तो अब इस वीडियो में देखते हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऐसी क्यों दिख रही हैं। वैसे अगर मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊं ना, तो तुमने इस पैटर्न को देख रखा है पहले ही। तो ये हो गई कॉपर की एक सर्कुलर लूप। वैसे तुम्हें ये थोड़ा ओवल दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ऐसे एक एंगल पे बना रखा है, वैसे ये है सर्कुलर ही। अब इसके थ्रू करंट फ्लो कर रही है कुछ ऐसे। यहाँ पे करंट बाहर से जाएगी और फिर यहाँ पे बोर्ड के अंदर और फिर पीछे से ऐसे आएगी और फिर यहाँ पे बोर्ड के बाहर, बाहर से ऐसे रिपीट। बिल्कुल ही ऐसे करंट यहाँ भी फ्लो कर रही है। करंट बाहर से कुछ ऐसे जा रही है, फिर बोर्ड के अंदर और फिर पीछे से ऐसे आएगी और फिर बोर्ड के बाहर। अब हमें यह पता लगाना है कि सर्कुलर लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ये कैसी होने वाली है हर जगह पे। यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है ना, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। अब देखो, पिछले एक वीडियो में हमने देख रखा है कि अगर एक स्ट्रेट वायर हो जिसके थ्रू की करंट फ्लो कर रहा हो, तो फिर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। और ये कुछ ऐसा होता है कि तुम राइट हैंड से इमेजिन करो कि तुम उस वायर को पकड़ रहे हो और कुछ ऐसे कि तुम्हारा थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। फिर जिस डायरेक्शन में तुम्हारी 4 फिंगर्स मुड़ेंगी ना, वही हो जाने वाली है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो, यहाँ पे तो यार हमारे पास जो कॉइल है ये सर्कुलर इन शेप है, ये तो स्ट्रेट वायर है नहीं। तो फिर क्या यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर हम कैसे पता लगाने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह पे क्या होगी? तो इसके लिए भी हम राइट हैंड थंब रूल का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो, मैं क्या करूंगा कि सर्कल के एक छोटे से सेक्शन पे, एक छोटे से हिस्से पे फोकस करने वाला हूं। तो देखो, अगर हम एक छोटा सा हिस्सा लें सर्कल का, तो ये एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही दिखने वाला है। और फिर यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके ये पता लगा लेंगे कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखने वाली है। अब ऐसे ही करते करते मैं हर एक सेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करूंगा और फिर मैं पूरे सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा लूंगा। तो अब यही करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि इस छोटे से सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड ये हमें पता लगानी है। तो देखो, मैं इस छोटे से सेक्शन को अपने राइट हैंड से पकड़ लेने वाला हूं और कुछ ऐसे कि मेरी राइट हैंड की थंब ये करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करे। तो यार, इस छोटे से सेक्शन के लिए करंट की डायरेक्शन ये कहां पे होने वाली है? तो देखो, यहाँ पे करंट ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है कुछ ऐसे। तो जब यहां पहुंचेगा तो करंट ये अंदर की तरफ जाने वाला है कुछ ऐसे। तो यानी कि मेरी थंब ये भी स्क्रीन के अंदर की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे दिखा देता हूं, ये कुछ ऐसे पॉइंट करने वाली है। देखो, यहाँ पे तुम्हें मेरी थंब तो नहीं दिख रही होगी क्योंकि मेरी थंब ये छुपी हुई है, ये अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है ना। तो देखो, अब मेरी ये जो चारों उंगलियां हैं ये जिस डायरेक्शन में मुड़ी हुई है ना, यही होने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस छोटे सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि इस छोटे सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रही है कुछ ऐसे। अब सिमिलरली आओ एक और सेक्शन के लिए पता लगाते हैं। इस वाले सेक्शन को ले लेते हैं। देखो, यहाँ पे करंट ये अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। यानी कि मैं इस सेक्शन को अपने राइट हैंड से कुछ ऐसे पकड़ूंगा कि मेरी थंब ये बाहर की तरफ पॉइंट करे। मैंने इसे बना के रखा हुआ है कुछ ऐसे, ये देखो। अब मेरी जो 4 फिंगर्स की डायरेक्शन है ना, ये मुझे बता देगी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस सेक्शन की डायरेक्शन। तो यहाँ पे मेरी 4 फिंगर्स ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ रही है। तो यानी कि इस केस में, इस सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना चाहिए कुछ ऐसे। यहाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। तो वैसे ही अगर मुझे पूरे सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है, तो मैं हर सेक्शन पे जाके ये सेम चीज को रिपीट करने वाला हूँ, राइट हैंड थंब रूल को। लेकिन यार, इसमें तो बड़ा टाइम लगने वाला है। तो देखो, इसी को जल्दी से करने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, ऊपर की तरफ, और लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। देखो, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान दो तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है और लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। तो यानी कि मैं इस सर्कल में किसी भी सेक्शन को लूं और वहां पे राइट हैंड थंब रूल को लगाऊं, तो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अंदर हमेशा ऊपर की तरफ पॉइंट करेगी और बाहर ये नीचे की तरफ पॉइंट करेगी। अब अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो 2 और सेक्शन पे मैं राइट हैंड थंब रूल को लगा के तुम्हें दिखा देता हूँ। ये मैंने पहले से ही बना रखा है कुछ ऐसे। तो मैंने राइट हैंड थंब रूल को लगा दिया है इस सेक्शन पे और इस सेक्शन पे। देखो, यहाँ पे हमारी थंब ये करंट के डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारी थंब ये करंट के डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। फिर मेरी 4 फिंगर्स ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देगी
यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो मैग्नेटिक फील्ड ये लूप के अंदर ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है और फिर लूप के बाहर ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है और फिर बाहर में नीचे की तरफ। तो अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि इस पूरे सर्कुलर लूप में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ये लूप के अंदर ऊपर की तरफ पॉइंट करेगी और लूप के बाहर ये नीचे की तरफ पॉइंट करने वाली है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हमेशा एक क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगी और कहीं और जाके एंड करने वाली है। नहीं, ये हमेशा एक क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। तो इसकी मदद से मैं ये कह सकता हूं कि हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये अंदर में ये ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगी और फिर बाहर आके ये बेंड करेगी नीचे की तरफ और फिर ये क्लोज लूप को फॉर्म करने वाली है। कहीं पे भी, यहाँ पे भी क्लोज लूप, यहाँ पे भी क्लोज लूप, यहाँ पे भी ऐसे क्लोज लूप। क्या तुम इसे इमेजिन कर पा रहे हो? और मैं तुम्हें इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इन दो एक्स्ट्रा हैंड्स को छुपा देते हैं। हाँ, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये फाइनली ऐसे दिखने वाली है। देखो हर जगह पे ये अंदर में ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, ऊपर की तरफ, और फिर ये बाहर जाके ये लूप को क्लोज कर रही है, नीचे आ रही है और फिर ये लूप को क्लोज कर रही है हर जगह। और ये पैटर्न बिल्कुल ही हमारे एक्सपेरिमेंट की तरह दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे भी क्लोज लूप हो रहा है। अब आओ एक आखिरी चीज, क्या तुमने इस फील्ड लाइन के पैटर्न को पहले कहीं और देख रखा है? आओ मैं तुम्हें इमेज को थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने इसे हटा दिया और अगर हम दूर से देखें तो ये कुछ ऐसी लगने वाली है। तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी दिखती है। तो सवाल ये कि क्या तुमने इस पैटर्न को कहीं और देख रखा है? तो हाँ, हमने इसी पैटर्न को देखा है, ऐसी कुछ सिमिलर पैटर्न को देखा है एक बार मैग्नेट के लिए। एक बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये भी क्लोज लूप, क्लोज सर्कुलर लूप बनाती है और सिमिलरली यहाँ पे भी हमें एक क्लोज सर्कुलर लूप मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। हाँ, एक अंतर ये है कि यहाँ पे फील्ड लाइंस ये थोड़ी सी पिचकी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे फील्ड लाइंस ये थोड़ी ज्यादा गोल मटोल हैं। लेकिन देखो, अगर मैं इस बार मैग्नेट को छोटा कर दूं या फिर एक छोटा सा बार मैग्नेट लूं तो इसकी फील्ड लाइंस ये भी बिल्कुल गोल मटोल हमारे इस फील्ड लाइन की तरह दिखने वाली है। तो यानी कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये रिजेंबल करती हैं एक छोटे से बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस को। अब एक बार मैग्नेट में फील्ड लाइंस ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाते हैं, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। और अगर तुम कॉइल पे आओ तो कॉइल में फील्ड लाइंस ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, कॉइल के बाहर में ऊपर से नीचे। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि इस कॉइल के ऊपर वाला हिस्सा ये नॉर्थ पोल को रिजेंबल कर रहा है और इस कॉइल का नीचे वाला हिस्सा ये साउथ पोल को रिजेंबल कर रहा है। वैसे यहाँ पे असल में तो पोल्स है नहीं, तुम इसे टच वगैरह नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर मैं इस कॉइल को इस मैग्नेट से कंपेयर करूँ ना तो हम कह सकते हैं कि ऊपर में नॉर्थ है और नीचे में साउथ है। तो यानी कि अगर हम एक सर्कुलर कॉइल लें और उसमें करंट कुछ ऐसे जाए कि बाहर से राइट और अंदर से लेफ्ट, तो यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कुछ ऐसे निकलने वाली है और इनका पता तुम राइट हैंड थंब रूल के इस्तेमाल से कर सकते हो। और फिर इस केस में ऊपर वाला हिस्सा ये नॉर्थ पोल को रिजेंबल करेगा और नीचे वाला हिस्सा साउथ पोल को। अब अगर तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो इस पूरी चीज को तुमको केवल 10 सेकंड के अंदर ही पता लगा सकते हो और इसे याद करने की जरूरत है नहीं। लेकिन किन्हीं किन्हीं किताबों में इसे याद करने का तरीका भी दिया हुआ होगा कुछ ऐसे। अगर तुम एक कॉइल को ऊपर से देखो और उसमें करंट कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तो इसे मान लेना कि ये वाली साइड नॉर्थ पोल को रिजेंबल कर रही है। और अगर तुम्हारी कॉइल में करंट ऊपर से देखने पे कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तो ये वाली साइड साउथ पोल को रिजेंबल करने वाली है। लेकिन यार ये तो बड़ी आसान चीज है ना, इसे तो हम आसानी से समझ के निकाल सकते हैं। तो फिर याद करने की क्या जरूरत है? याद करने के लिए वैसे भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और मैथ्स के डेरिवेशन वगैरह वगैरह, है ना। तो सिंपल चीजों को क्यों याद किया जाए। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, इसे हमने पता लगाया राइट हैंड थंब रूल के इस्तेमाल से। और हमने ये भी देखा कि कैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक छोटे से एम्पियर सर्किटलનો નિયમ લખો અને સમજાવો। મિત્રો, જેવી રીતે પહેલા ચેપ્ટરમાં ગોસનો નિયમ અગત્યનો હતો તેવી જ રીતે એમ્પિયર સર્કિટલનો નિયમ એ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે। તો મિત્રો, એમ્પિયર સર્કિટલમાં નિયમમાં આપણે જોઈએ તો એમ્પિયર સર્કિટલનો નિયમ એ બાયો-સાવર્ટના નિયમને ખૂબ જ સારી રીતે દર્શાવવાની એક રીત તરીકે ગણી શકાય છે। જેવી રીતે આપણે કુલમ્બના નિયમને ગોસના નિયમ સ્વરૂપે ખૂબ સારી રીતે દર્શાવી શકતા હતા તેવી જ રીતે બાયો-સાવર્ટના નિયમને એમ્પિયર સર્કિટલના નિયમ વડે ખૂબ જ સારી રીતે દર્શાવી શકાય છે।
મિત્રો સૌપ્રથમ આપણે એનું વિધાન જોઈએ, એનો નિયમ જોઈએ. તો કોઈ બંધ વક્ર પરનું ચુંબકીય ક્ષેત્રનું, આ બંધ વક્રનું ચુંબકીય ક્ષેત્રનું રેખા સંકલન એટલે બી, અને એનું બંધ વક્રનું રેખા સંકલન એટલે ડીએલ. એટલે આના માટે આપણે આજે મેં સૂત્ર લખ્યું છે એના માટે આપણે બોલીએ તો ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં કોઈ બંધ વક્ર પર ચુંબકીય ક્ષેત્રનું રેખા સંકલન બી ડોટ ડીએલ, એટલે બી એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્રનું, ડીએલ એટલે રેખા સંકલન. અને સંકલન કેવું છે તો કે અહીંયા રાઉન્ડ કરેલો છે, એટલે બંધ વક્ર પરનું ચુંબકીય ક્ષેત્રનું રેખા સંકલન એ તે બંધ વક્ર વડે ઘેરાતો કુલ વિદ્યુતભાર. કુલ વિદ્યુતભારને આપણે સિગ્મા આઈ વડે દર્શાવીએ. તો કુલ વિદ્યુતભાર સિગ્મા આઈ અને શૂન્યાવકાશની પરમિએબિલિટી μ0 ના ગુણાકાર બરાબર થાય છે. આ નિયમ છે. ફરીવાર નિયમ બોલું છું. ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં કોઈ બંધ વક્ર પરનું ચુંબકીય ક્ષેત્રનું રેખા સંકલન એ તે બંધ વક્ર વડે ઘેરાતો કુલ વિદ્યુતભાર અને શૂન્યાવકાશની પરમિએબિલિટીના ગુણાકારના બરાબર થાય છે. હવે મિત્રો એને એક આકૃતિથી સમજીએ. તો આકૃતિમાં આપણને એક બંધ વક્ર આપેલો છે જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આ એક બંધ વક્ર છે. બંધ વક્ર વડે ઘેરાયેલો વિદ્યુતભાર એ આ જે છે એ બંધ વક્ર વડે એ ઘેરાયેલો વિદ્યુતભાર ગણી શકાય. હવે મિત્રો એનું આપણે કોઈ એક ખંડ પરનું પહેલાં સંકલન લઈશું તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે બીની દિશા છે એ આ બીની દિશા છે અને આ જ ડીએલની દિશા છે. બંને એક જ દિશામાં છે એટલે થીટા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 છે. થીટા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 છે એટલે હવે આપણે આખા રિંગ માટે જો આ સમીકરણ લખવું હોય મિત્રો તો આમ લખી શકીએ છીએ BDL cos 0 થીટા 0 નો છે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ μ0 સિગ્મા આઈ એટલે એક વહેતો જે પ્રવાહ છે એ એક જ હતો એટલે આઈ. cos 0 ની કિંમત તો 1 હોય છે એટલે આપણે લખી શકીએ બી બંધ વક્રનું રેખા સંકલન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ μ0 આઈ. ડીએલ એટલે આખા પરિઘ પરનું સંકલન લેવાનું છે. આર ત્રિજ્યાની જો રિંગ હોય તો આપણે આમ લખી શકીએ 2πr ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ μ0 આઈ, એટલે બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ μ0 આઈ અપોન 2πr. તો આમ જે આઈ પ્રવાહધારી તાર હતો એનાથી આર અંતરે ચુંબકીય ક્ષેત્રનું સૂત્ર μ0 આઈ અપોન 2πr થશે. તો બહુ સિમ્પલ પ્રશ્ન છે. હવે આપણે એને શબ્દસહ જોઈ લઈએ મિત્રો. તો જેવી રીતે વિદ્યુતશાસ્ત્રમાં કુલમનો નિયમ સમજવા માટે ગોસનો નિયમ જરૂરી છે તેવી જ રીતે મેગ્નેટિઝમમાં એમ્પિયર સર્કિટલનો નિયમ બાયો સાવર્ટના નિયમને સમજવા માટે જરૂરી છે. આ નિયમમાં આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં કોઈ બંધ વક્રનું ચુંબકીય ક્ષેત્રનું રેખા સંકલન એ તે બંધ વક્ર દ્વારા ઘેરાતો કુલ વિદ્યુતભાર એટલે કે સિગ્મા આઈ અને શૂન્યાવકાશની પરમિએબિલિટી એટલે કે μ0 ના ગુણાકાર બરાબર હોય છે. આ સૂત્ર ઉપરથી સમજી શકાય છે. અહીં જે લંબચોરસ કરેલું છે એની બદલે આપણે ત્યાં આવું રાઉન્ડ કરવું પડે જેથી કરીને બંધ વક્રનું રેખા સંકલન દર્શાવે છે. તો આપણે જે આ સંકલનમાં આ જે ચોરસ દેખાય છે એની બદલે આમ રાઉન્ડ કરવું પડે તો જ તે એ બંધ વક્રનું એ રેખા સંકલન છે તેવું આપણે કહી શકીએ. તો એના ઉપરથી આપણે આ સૂત્ર લખી શકીએ છીએ સંકલન બી ડોટ ડીએલ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ μ0 સિગ્મા આઈ. તો આ જે બંધગાળો છે તેને એમ્પિરિયન લૂપ કહેવામાં આવે છે. જેવી રીતે આપણે ગોસના નિયમમાં ગાઉસિયન સરફેસ વિચારતા હતા, ગાઉસિયન પૃષ્ઠ વિચારતા હતા,
તેવી રીતે એમ્પિયરના નિયમમાં એમ્પિરિયન લૂપ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે, જે આપણે અહીં સાબિત કરેલું છે. મિત્રો, પ્રવાહની દિશા જો ઉલટી હોય તો આપણને એ સિગ્મા આઈ જે છે એમાં આઈ પ્લસ માઇનસ એ પ્રવાહની નિશાની પ્રમાણે આપણે ધ્યાનમાં લેવાના હોય છે. હવે આપણે મિત્રો એના પછીના પ્રશ્નમાં જોઈએ કે જે આપણે ઓલરેડી તારવી ગયા છીએ. તો સેમ વસ્તુ છે કે અહીં આ એક પ્રવાહધારિત સળિયો છે, જોઈ શકાય છે. સેમ વસ્તુ છે, અહીંયા આ ખંડ છે અને આ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું આપણે રેખા સંકલન લેવાનું છે. બી ડોટ ડીએલ કરીએ એટલે આપણને હમણાં જે આપણે સમીકરણ તાર્યું હતું બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ μ0I અપોન 2πr સમીકરણ મળશે, જેનું સાદુરૂપ આપણે આની પહેલાંના પ્રશ્નમાં આપી ગયા છીએ. તો એ ઉપરથી આપણને એ સમીકરણ એ મળી જાય છે બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ μ0I અપોન 2πr, એટલે કે કોઈ આઈ પ્રવાહધારિત તાર હોય તો એનાથી આર અંતરે ચુંબકીય ક્ષેત્રનું આ સમીકરણ થશે μ0I અપોન 2πr. મિત્રો, આના એક બે દાખલા છે એ આપણે કરીશું, પરંતુ આ સૂત્ર ક્યાંથી આવ્યું છે તો એમ્પિયરના સર્કિટલના નિયમની મદદથી આપણે આ સૂત્ર એ તારવેલું છે. તો આમ આ જે પ્રશ્ન છે એ જ્યારે પૂછાતો હોય ત્યારે આપણે આ બંને વસ્તુ લખવાની થતી હોય છે. એટલે 25 અને 26મો પ્રશ્ન બંને એ ભેગો કરશો ત્યારે તમને એમ્પિયર સર્કિટલનો નિયમ એ સંપૂર્ણપણે પૂરો થશે. થેન્ક યુ.